like matrix which fills the inside space of any type of cell. Okay, and it is the arena where all the reactions, where all the metabolic reactions, all the processes of the cell take place, and all the organelles such as nucleus, mitochondria, Golgi, all the organelles which are shown here, they are suspended in the cytoplasm. ठीक है, तो cytoplasm क्या है? Neither it is solid nor it is liquid. It is a jelly like matrix which fills the inside space of the cell, and it is the arena where all the reactions of the cell take place, and all the organelles are also suspended inside the cytoplasm, right? Now have a look at the structure which is located in the central position. The organelle which is located in the central position. This is the largest organelle shown in blue. What is it? Nucleus. Okay. This is the characteristic feature of any eukaryotic cell. मैंने definition में ही बताया eukaryotic cells are those type of cells which contain a well defined nucleus. So if you are drawing a diagram of animal cell or plant cell, तो एक बात clear है कि nucleus जरूर draw करोगे, right? तो the structure shown here in blue is nucleus. This is the largest organelle in animal cell. ठीक है, अब जो ये nucleus होता है, what is its function? It is basically the storehouse of genetic information. ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्टोर होता है, right? It is the storehouse of genetic information. And inside the nucleus आपको एक dense body छोटी सी दिखा रखी है in the center of the nucleus, nucleolus. क्या दिखा रखी है? न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस बॉडी होती है विच इज मेम्ब्रेनलेस, जिसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं होती अलग से, राइट? दिस इज न्यूक्लियोलस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा फिर भी मैं बता देती हूँ, लेकिन जब हम न्यूक्लियस डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में है, तब मैं आपको डिटेल में इसका फंक्शन बताऊंगी. अभी के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर जो राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी किए थे, ठीक है? तो राइबोसोम्स में एक कंपोनेंट होता है राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, राइबोसोम में आरएनए जो होता है उसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए. सो द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम का जो आरएनए वाला पोर्शन होता है वो कौन सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियोलस. ठीक है, अभी के लिए हम इतना याद कर सकते हैं, बाद में हम डिटेल में करेंगे न्यूक्लियस में. उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक और लेबल्ड डॉट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है. दो हम डॉट जैसे स्ट्रक्चर से इसको ना शो करके थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे ये लेबल्ड है क्रोमेटिन, है ना? व्हाट इज क्रोमेटिन? आपने क्रोमोसोम का नाम सुना हुआ है ना? यू नो व्हाट इज क्रोमोसोम, है ना? डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द सेल, राइट? तो जो डीएनए होता है बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है सेल के अंदर. if the cell in the if the cell is in the dividing phase, ठीक है, if the cell has to undergo cell division, all the DNA becomes condensed, it gets compact to form chromosome. And in the non-dividing cell, the DNA lies in the form of loose thread. Okay, the DNA in the form of loose thread is called as chromatin. तो अगर डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम. और वो कब होगा? व्हेन द सेल हैज टू अंडरगो सेल डिवीजन, right? And when the cell is not in the dividing phase, then all the DNA is present in the form of loose threads, tangled loose threads. Those threads are called as chromatin. Is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Now moving on to the next structure, just adjacent to the nucleus, you can see a stack of certain channels shown in red. ठीक है, रेड कलर के न्यूक्लियस के जस्ट साथ लगे हुए आपको रेड कलर के चैनल्स का कुछ स्टैक नजर आ रहा है. दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उसके साथ आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो किया है इन पर्पल, which is a stack of certain tubules, which is a combination of certain tubules like structure, है ना? This is smooth endoplasmic reticulum. अब what is this rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? हमने इसको भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी जब हम ओवरव्यू करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रख लेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है. देखो, पहले तो सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम जूम करके देखें तो इसके सरफेस पे यू कैन सी स्मॉल डॉट्स
राइट और पर्पल वाला जो स्ट्रक्चर है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे कोई भी डॉट शो नहीं करी हुई. व्हाट आर दीज डॉट्स ऑन रेड कलर्ड स्टैक्स? These are nothing but ribosomes. तो एक डिफरेंस जो स्ट्रक्चर वाइज होता है बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज दैट the rough endoplasmic reticulum is studded with ribosomes. It bears ribosomes over its surface, and smooth endoplasmic reticulum do not contain ribosomes. और राइबोसोम्स का फंक्शंस मैंने सबको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के दौरान बताया था. राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. जब भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उनका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का. So because ribosomes are present over rough endoplasmic reticulum, so rough endoplasmic reticulum is concerned with the synthesis of proteins. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं है तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं होता. इसका रोल कहाँ होता है? इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स. तो लिपिड्स या फैट्स की सिंथेसिस में रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट bears ribosome over its surface, it is concerned with the synthesis of proteins. Is it clear or not? Yes, ma'am. ओके ठीक है. तो अभी तक हमें तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों का फंक्शन समझ आ गया है. न्यूक्लियस का क्या मेन फंक्शन है? हमने ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ डिटेल में करना है, हमारे सिलेबस में है मेंशन्ड. लेकिन अभी जब हम एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे कि एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है. Besides this, there are lots of other functions which these organelles perform. लेकिन I am telling you about the main function अभी. Overview दे रही हूँ एक animal cell का, right? तो nucleus is the storehouse of genetic information, यानी कि जितना भी DNA store होगा वो nucleus में होगा. This is the main function of nucleus. Rough endoplasmic reticulum का main function is synthesis of protein, and the main function of smooth endoplasmic reticulum is synthesis of fats or lipids. ठीक है. अब इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देखो. दिस स्ट्रक्चर विच इज शोन इन येलो कलर, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? आप लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, right? So mitochondria is called as powerhouse of the cell because it generates energy in the form of ATP. सेल के अंदर जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब respiration in the presence of oxygen, right? And what is respiration? Respiration is the process by which energy is released by the oxidation of food. ठीक है. फूड से एनर्जी रिलीज कराने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. एंड रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ओके, इट इंक्लूड्स लॉट्स मेनी पाथवेज. बहुत सारे पाथवेज होते हैं. देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है. ऑल दीज रिएक्शंस, ओके, व्हेन दे टू बी performed in the presence of oxygen, they take place inside mitochondria. So mitochondria is the site where the synthesis, where the release of energy take place. ठीक है. I guess screen चली गई होगी. I got a call. I cancelled it. Let me share the screen again. So is the screen visible now? Yes, ma'am. Okay. So mitochondria is the site of aerobic respiration. It is mainly concerned with the release of energy from the food. तो जितनी भी energy बनेगी सेल के अंदर for carrying out various activities, वो कहाँ पे बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया is called as power house of the cell. ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर 3 मार्क्स में. ठीक है. Why mitochondria is called as power house of the cell? Because it generates energy in the form of ATP. और कैसे जनरेट करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो इस प्रोसेस के लिए, इस रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स लॉट्स ऑफ एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. सो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स are located in mitochondria and they are concerned with the release of energy from the food. और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है?
ATP. तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है या स्टोर होती है सेल के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये मेंशन करना होता है जब हम इस टाइप के आंसर्स लिखते हैं, राइट? उसके बाद हैव अ लुक एट दिस ब्लू कलर्ड, यस व्हाट, हैव अ लुक एट दिस हेमिस्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको ब्लू में ऊपर शो किया है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस के राइट में ब्लू हेमिस्फेयर लाइक स्ट्रक्चर इज शोन which is labeled as lysosome. Now what is this lysosome? Lysosome are the suicidal bag of the cells. Lysosome को क्या बोलते हैं? Suicidal bag of the cell. एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ तुम लोग को। Ribosomes, protein factories of the cell. Mitochondria, powerhouse of the cell. Lysosome, suicidal bag of the cell. क्यों कहते हैं इन्हें suicidal bag of the cell? क्योंकि lysosomes are the space, they provide the space for storing the digestive enzymes. इनके अंदर digestive enzymes होते हैं। कैसे digestive enzyme होते हैं? जैसे हमारे जो cells होते हैं उनके अंदर the main biomolecules which are found are carbohydrates, proteins, fats या lipids, DNA and RNA. ये main तरह के biomolecules हैं which exist in all the type of cells, right? So to digest all these components, the digestive enzymes are present inside lysosomes. So the category of enzymes, ठीक है, the broad category of enzymes which digest carbohydrates are called as carbohydrases. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए proteases, ठीक है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजेस। ये सारी तरह के एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेजेस, lipases, proteases and nucleases, all these digestive enzymes are present inside lysosomes. तो अगर ये lysosome burst हो जाए ना, and if their contents are released in the cell, the whole cell will be destroyed, it will be digested, right? That's why they're called as suicidal bag of the cell. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now have a look at this purple colored structure. ये देखो आपको दिखा रखा है Golgi apparatus, right? Now what is this Golgi apparatus? देखो, जब endoplasmic reticulum when it synthesizes protein and lipids, rough endoplasmic reticulum will synthesize proteins and smooth endoplasmic reticulum will synthesize lipids. Sometimes these proteins and lipids are not functional. They cannot perform their function without their modification. जैसे फैक्ट्री में हम कोई चीज सिंथेसाइज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉ फॉर्म, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, सो दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फंक्शनल फॉर्म, right? Similarly, inside the cell, when the proteins and lipids are produced, some of these need to be modified so that they can perform their function. So the modification of proteins and lipids is performed inside Golgi apparatus, ठीक है? So after their synthesis in the endoplasmic reticulum, proteins and lipids enter inside Golgi apparatus. They are modified inside the Golgi apparatus. Then they are packaged by the Golgi apparatus, and then they're sent to their respective destinations. Respective destinations का मतलब है उस प्रोटीन का जिस भी सेल के स्ट्रक्चर में यूज है. Suppose that protein is destined to move to plasma membrane. तो Golgi apparatus will decide कि उसको कैसे भेजना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. या गोल्जी apparatus ने अगर देखा कि ये वाले प्रोटीन का यूज सेल के बाहर है, then it will export that protein, that particular protein outside the cell. या फिर अगर उस प्रोटीन का यूज सपोज न्यूक्लियस के अंदर है, तो उस प्रोटीन को न्यूक्लियस में भेज देगा गोल्जी apparatus. So Golgi apparatus is also called as traffic police of the cell. Why it is called as traffic police of the cell? Because it diverts the molecular traffic to their respective destinations. ठीक है, तो Golgi apparatus के main functions क्या है? Modifications of proteins and lipids after their synthesis from endoplasmic reticulum, right? After their synthesis by endoplasmic reticulum, okay, their modification, their packaging, and their delivery to the sites of their function, right? It is performed by Golgi apparatus. Hence, Golgi apparatus is also called as traffic police of the cell. Is it clear?
Yes, ma'am. ओके Yes. ओके, ये टर्म्स तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, राइट? आई गेस फंक्शंस बहुत सारे आपके माइंड से स्लिप कर गए होंगे बिकॉज 11 12 में आप लोग ने नहीं पढ़ा बायोलॉजी, लेकिन आई गेस आई मेक माय पॉइंट क्लियर, ठीक है? आई गिव माय 100% टू मेक माय पॉइंट्स क्लियर। अगर कहीं भी नहीं समझ आता यू कैन इंटरप्ट मी, मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया, या फिर कोई भी नेटवर्क इशू है देन आल्सो यू कैन इंटरप्ट मी। फिर देखो यहाँ पे ये मैम येलो कलर, यस यस, मैम लाइसोसोम। लाइसोसोम दोबारा बता दूं? या मैम। ओके, तो जो ये लाइसोसोम्स होते हैं, lysosomes are the sites for the storage of digestive enzymes। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस, जब भी एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स को हम कैसे नेम करते हैं? कन्वेंशनल मेथड से, या जो ट्रिवियल नेम्स होते हैं एंजाइम्स के वो कैसे डिसाइड होते हैं? यू जस्ट ऐड the suffix is to its जो भी जिस पे भी सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करते हैं एंजाइम्स, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस, टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिएजेस, ठीक है? और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस। तो लाइपेजेस, proteases, nucleases, carbohydrases, all these digestive enzymes are present inside lysosomes, ठीक है? तो लाइसोसोम के अंदर ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो लिपिड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जो डीएनए और आरएनए को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर लाइसोसोम्स ने ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने अंदर से रिलीज कर दिए तो the whole cell will burst या it will be destroyed, है ना? पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, right? That's why lysosomes are also called as suicidal bag of the cell। जो wear out cells होते हैं ना, worn out cells होते हैं, जो खराब हो चुके होते हैं या अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है? अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब सेल वेयर आउट हो जाते हैं, ठीक है? That's why they are called as suicidal bag of the cells। Okay, is it clear now? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. अब देखो ये next Yes, structure ma'am. देखो। Okay, now have a look at this yellow colored rod like structures। There are two rods which are shown in yellow and they are lying 90 degree to each other, है ना? जो ये सेंट्रियोल्स करके आपको लेबल करके दिखा रखा है, each rod is further composed of certain tiny small tubules, है ना? हर रॉड, जो ये दो रॉड्स दिखा रखे हैं, they are further composed of tiny tubule like structure and both these rods are arranged at 90 degree to each other, ठीक है? तो एक रॉड को we'll call it centriole और दोनों के कॉम्बिनेशन को we call centrosome, राइट? तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, और एक रॉड को बोलते हैं सेंट्रियोल। और जो ये tiny tubular structure बने हुए हैं which are making these centrioles, this each tiny tubule is called as microtubule। हर एक रॉड को, जो ये हर रॉड में ये पतली पतली ट्यूब्स दिखा रखी हैं, these are microtubules, ठीक है? और पूरी एक रॉड को क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। और दोनों जो 90 डिग्री पे अरेंज्ड हैं ये रॉड्स, these are collectively called as centrosome, ठीक है? Now what is the function of these centrioles or centrosome? It takes part in animal cell division। In fact, animal cell division cannot occur without the contribution of these centrioles। Centrioles are absent in plant cells। Plant cells में ये centrioles नहीं मिलते, ठीक है? They are only found in animal cells, ठीक है? There are different mechanisms which are used by plants and animals for division। When the plant cell and animal cell have to divide, they follow different mechanisms, ठीक है? तो एनिमल सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म होता है, when the animal cell has to divide into two, okay, it takes there is a major role of centriole in it, ठीक है? So centrioles are present only in animal cells and they have a role in animal cell division, ठीक है? क्या रोल होता है, कैसे रोल प्ले करता है, that is in unit 3। unit 3 में there is a chapter called as cell cycle, वो हम डिटेल में करेंगे, माइटोसिस एंड मायोसिस,
ठीक है, तब आपको सेंट्रियोल का रोल अच्छे से क्लियर होगा. फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट सेंट्रियोल्स प्ले अ मेजर रोल इन animal cell division, right? Now have a look at these tubular structures जिनको cytoskeleton करके लेबल किया हुआ है ना? Throughout the cells you can see that the cytoskeleton is distributed, right? Throughout the cytoplasm these rod or tubule like structures are distributed. इनको collectively हम क्या बोल रहे हैं? cytoskeleton. ठीक है, अब ये cytoskeleton क्या होता है? फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, देखो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हो, है ना? कुछ थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में आपको पता होगा दैट द प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, है ना? और जो सेल वॉल होती है बहुत रिजिड होती है. सेल वॉल एक शेप प्रोवाइड करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को. अब एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल इज एब्सेंट, आई टोल्ड यू, है ना? नहीं होती एनिमल सेल में सेल वॉल. तो कुछ जो एक फ्रेमवर्क चाहिए सेल को कि थोड़ी बहुत शेप मेंटेन हो जाए उसकी, इट इज प्रोवाइडेड बाय साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन क्या करता है? ये सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि सेल अपनी कुछ शेप मेंटेन करके रखे. ठीक है, सो दिस साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री. व्हाट आर दोस? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है, तो तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और सर्टेन फाइबर्स. ठीक है, एंड विच प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क टू द सेल. ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. आपकी बुक में दे रखी होंगी ये टर्म्स, हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है. ये वाला साइटोस्केलेटन को हमने डिटेल में नहीं करना, बट अगर एनिमल सेल का डिस्क्रिप्शन आता है तो आप 2 या 3 लाइंस में यू कैन एक्सप्लेन इट. ठीक है, उसके बाद आई गेस एनिमल सेल हम लोग ने कर लिया. हाँ, ये देख सकते हो आप, देखो एनिमल सेल की शेप जो है इट इज नॉट रेगुलर. कोई डेफिनेट शेप नहीं होती एनिमल सेल्स की, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एनिमल सेल्स आर नेवर रेगुलर इन शेप. दूसरी बात, animal cells vary मतलब very considerably in their shape in different cell types. जैसे अगर मैं बात करूं न्यूरोनल सेल्स की या मसल सेल्स की या हार्ट सेल्स की, they vary in shape, varies according to function they perform. तो न्यूरोनल सेल की शेप क्या होगी? that will be decided by its function. Similarly intestinal cells की क्या शेप होगी? it will be decided by its function. तो जैसे अगर मैं इंटेस्टिनल सेल्स की बात करूं, जैसे ये आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा रखी है ना राइट हैंड साइड पे, जो ये ऑरेंज कलर की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, these are meant for increasing the surface area of the cell. तो एनिमल सेल्स में अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, it is thrown into certain finger like projections called as microvilli. तो एनिमल सेल्स में अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, जैसे सपोज किसी सेल का फंक्शन है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले जो सेल्स होंगे उनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का. सो टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है, it is thrown into finger like projections which are called as microvilli. microvilli, microvilli, right? So these are all the structures which are present in animal cells. Is it clear or not? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो आज आप लोग को सी सेक्शन को तो मैंने कल बोला भी था that you need to draw this diagram in your notebook, right? डी सेक्शन वाले बच्चे, ये आपका आज का होमवर्क है. अपनी नोटबुक में जो मैंने आपको बोला था यू हैव टू मेंटेन इट सेपरेटली, बायो की नोटबुक, ठीक है, उसमें आपको ये एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है और आप नोट्स को रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से देख के आप एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करो और एक एक जो मैंने फंक्शन बताया ऑर्गेनल का उसको माइंड में रखो. मेन मेन फंक्शन आपके दिमाग में रहने चाहिए, राइट? उसके बाद लेट मी कम टू प्लांट सेल वाला डायग्राम. यस, दिस वन. ठीक है, तो प्लांट सेल का डायग्राम देखते हैं. ये देखो, प्लांट सेल में एक तो बात क्लियर है, इट इज रेगुलर इन शेप. प्लांट सेल इज रेगुलर इन शेप, its shape is maintained. Its shape is maintained because of the, एक सेकेंड, फिर एक कॉल आ गया था बच्चों तो स्क्रीन चली गई है. लेट मी शेयर इट अगेन.
दिस डायग्राम इज ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, तो प्लांट सेल में द शेप इज रेगुलर because of the presence of a rigid cell wall. Cell wall in plants is made up of cellulose and it provides rigidity and shape to the cell. So the plant cells are regular in shape. So one point of difference should be clear by now कि animal cell are irregular in shape and plant cells are regular in shape. दूसरी बात, एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लांट सेल्स में सी द आउटर मोस्ट कवरिंग शोन इन डार्क ग्रीन हियर इज सेल वॉल. है ना, लेबलिंग में देखो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप मोस्ट लेबलिंग इज सेल वॉल. ठीक है, तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट सेल. उसके बाद सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन तो कवर्स एवरी टाइप ऑफ सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक में भी कोई भी टाइप हो. सो सेल मेम्ब्रेन बाइंड्स एवरी, सेल मेम्ब्रेन एनवेलप्स एनी टाइप ऑफ सेल, every type of cell. ठीक है, and the main function of cell membrane is, because cell membrane is selectively permeable in nature. है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows the passage of certain molecule, certain solvents across it, but do not allow the entry of solute across it. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट अलाउज द कंट्रोल्ड एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट. तो किस मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है सेल के, किस मॉलिक्यूल को बाहर एक्सक्रीट करना है, किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रिटेन करके, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद आपको देखो सेल, प्लांट सेल का एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर है. There is a presence of large central vacuole in the plant cell. The central space is occupied by large central vacuole. In fact, every mature plant cell contains this large central vacuole which occupies around 90% of the volume of any mature plant cell. हर मेच्योर प्लांट सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा. What is the function of this vacuole? ठीक है, this vacuole stores water, certain waste materials, certain inorganic salts and certain minerals. तो ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी, वैक्यूल के अंदर. वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेबल करके दे रखा है वैक्यूल मेम्ब्रेन. इसका एक स्पेशल नाम होता है टोनोप्लास्ट. इस मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट. ठीक है, तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड प्लांट सेल. ठीक है, अब देखो एनिमल सेल में सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस. ये देखो एनिमल सेल में सेंटर में ब्लू में क्या है, न्यूक्लियस. लेकिन प्लांट सेल्स में द central space is occupied by central vacuole. Therefore, all the other organelles, including the nucleus, they are pushed towards the periphery. They are pushed towards the boundary. बाकी जितने भी organelles देखो वैक्यूल के अराउंड, पेरिफ्री की साइड, बाउंड्री वाली साइड पे प्रेजेंट है. क्यों वैक्यूल ने, क्योंकि सारा का सारा स्पेस सेंटर वाला ऑक्यूपाई कर लिया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. Animal cells contain nucleus in the center, whereas in plant cell, nucleus is present towards the periphery. In plant cells, large central vacuole is present. In animal cells, central vacuole is absent. However, some animal cells, not all, some animal cells may contain vacuole, and if they are present, they are very small in size. ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको बताए हैं, यू नीड टू राइट देम डाउन. ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस, लेकिन मैं साथ के साथ भी आप लोग को क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, डायग्राम के साथ रिलेट करके. अच्छा, इसके अंदर वैक्यूल के अंदर देखो, यू माइट सी सर्टेन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स. रेफिस क्रिस्टल लिखा हुआ है, RAPHIDE प्रोनाउंसिएशन होती है रेफिस क्रिस्टल, रेफिस क्रिस्टल. और उसके नीचे है ड्रूज क्रिस्टल. So these Rephis crystal and Druze crystals are the salts of calcium. जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी सिलिका वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, सो ऑल दीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल. ठीक है, what is the difference between Rephis crystal and Druze crystal? Rephis crystals are basically needle shaped and Druze crystals are star shaped or globular in appearance.
ठीक है. So all these crystals are also found inside the vacuole. Is it clear till now? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. तो बाकी इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया शो किया है. सेम फंक्शन एज दैट इन एनिमल सेल. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का. फिर देखो अमाइलोप्लास्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे अमाइलोप्लास्ट स्टार्च ग्रेन बॉटम पे शो किया गया है. तो यू नो दैट द रिजर्व फूड इन प्लांट्स इज, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स इज स्टार्च. सो स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट इन प्लांट्स. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बता दिया. उसके बाद यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे क्लोरोप्लास्ट आपको शो किए गए हैं. क्लोरोप्लास्ट, देयर आर मेनी क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर शोन इन दीस सेल्स. So chloroplasts are the sites of photosynthesis. You know that plants perform photosynthesis. They can convert inorganic form of carbon into organic food. They can fix atmospheric carbon dioxide and convert it into glucose or any other organic molecule, right, in the presence of sunlight. So the capture of sunlight, okay, the trapping of sunlight is performed by chloroplast, because chloroplast contains a green colored pigment chlorophyll which has this ability to trap sunlight. ठीक है. तो chloroplast are green in color because of the presence of a green colored pigment called as chlorophyll, which traps the sunlight, which has the ability to trap the sunlight and use this sunlight to convert inorganic form of carbon to organic form, right. उसके बाद आपको यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेफ्ट में शो किया गया है. उसके फंक्शन आप वही है सेम जो मैंने एनिमल सेल में बताया था. न्यूक्लियस शो किया गया है, सेम फंक्शन, स्टोरेज ऑफ डीएनए. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी सेम फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. राइबोसोम का सेम फंक्शन, प्रोटीन की सिंथेसिस. गोल्जी का भी सेम फंक्शन. लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन जरूर करना चाहूंगी, दैट द गोल्जी apparatus, जो मैंने अभी एनिमल सेल में भी मेंशन किया था ना, जो मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की और लिपिड्स की और जो पैकेजिंग करता है, एंड विच इज कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, वो एनिमल सेल में गोल्जी apparatus ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में दैट rudimentary form of Golgi apparatus is called as dictyosome. DICTYOSOMES. Dictyosome is nothing but a less developed form of Golgi apparatus. Golgi apparatus को हम Golgi complex भी बोलते हैं, Golgi body भी बोलते हैं. Golgi body, Golgi complex और Golgi apparatus is one and the same thing. ठीक है. Dictyosome is less developed form of Golgi apparatus which is found in plant cells. ठीक है. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो आज आप लोग का होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक्स में एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम्स ड्रॉ करोगे. ओके. और जो अटेंडेंस है, बिकॉज आज 2 सेक्शंस की कंबाइंड क्लास है, ठीक है, तो अगर आप लोग की स्क्रीनशॉट लेती हूँ यहाँ पे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट मी टू फिगर आउट कि कौन सा बच्चा कौन से सेक्शन में है, राइट. सो इट्स बेटर आप लोग अपने सेक्शंस में कैसे मेंशन करो, एक तो अपना रोल नंबर और दूसरा लिख दो बायोलॉजी क्लास. ठीक है, बायोलॉजी क्लास और अपना रोल नंबर अपने सेक्शन नेम वाले भी ग्रुप लिखना में, मैम. व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अटेंडेंस भेज दो. ओके, यू कैन लीव नाउ. Thank you, ma'am. ओके. मैम यस. मैम आप हिंदी में करा दिया करो जी. एक सेकेंड, वेट फॉर अ वाइल. यस, क्या बोल रहे हो? हिंदी में समझा दिया करो मैम. हिंदी में समझा दिया करूं? ठीक है, हिंदी में समझा दूंगी. ओके. थैंक यू मैम. ओके. कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे भी अगर कुछ नहीं भी समझ आए, यू कैन आस्क मी. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, हमने नोट्स में से पढ़ी थी या हमने गूगल किया था, हमें ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. ओके, डोंट हेजिटेट. मैम. हेलो मैम. यस. मैम आप जो सब समझाते हो इसको लिखना भी है क्या मैम? नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू राइट. इफ देखो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. आई एम प्रोवाइडिंग यू हैंड रिटन नोट्स. आई जस्ट वांट कि जो मैं आपको होमवर्क में डायग्राम्स कह रही हूँ, यू ड्रॉ देम. जितना मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने डिफरेंस लिखने को बोला है तो आप उन्हें लिख लो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर मेकिंग क्लासरूम नोट्स.
तो मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली जो मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाओ, इट्स ऑलरेडी देयर इन द नोट्स। इफ यू फील लाइक राइटिंग, क्योंकि बच्चों को कईयों को याद एक आदत होती है कि लिख लिख के क्लासरूम नोट्स बना के अपनी राइटिंग में याद होता है, देन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन जितना मैं बोल रही हूँ, सपोज मैंने आज बोला है एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आपको जरूर करना है अपनी नोटबुक में। ओके ओके। ओके।